Now the next chapter we have, this is the artist. Artist is a story which is a Japanese story. Artist. The artist is a story which is written by Shiga no Aya. Shiga no Aya is a Japanese writer. That's why his name is Shiga no Aya. Very different name. This is, yep. And this is your Rambo second sixth lesson. Any problem? So the artist written by Shiga no Aya. Writer's name is very important. He is a Japanese writer, story writer, and so many novels also are written by him, Shiga no Aya. And this is a story about a primary school boy whose name is Saibi. Saibi. Here is the name Saibi because he is a Japanese boy. So Japanese names are Saibi, Shiga, these all names. So let me see a summary of this chapter which we have to write directly at the examination. Yeah. Okay. So let me proceed now further. So first sentence we will see. Saibi had a hobby for collecting goods. What is mean of this? If we talk about the structure, we will be talking about the structures first and then mean. Saibi had a hobby. Hobby means shock. Like someone has hobby to play cricket, someone has hobby to watch movies, someone likes to go somewhere to visit hill station or somewhere. Someone is in hobby to take photographs of historical places. So Saibi, the primary school boy, he is this boy, he is a child who studies in Japan, primary school in Japan. Yeah. So Saibi, who is a child, had a hobby for collecting goods. Collecting means इकट्ठा करना. What is his hobby? For collecting goods. What is mean of goods? Goods means a kind of pumpkin. Yeah. Like we have large pumpkin, we have a small pumpkin. So a kind of pumpkin, like which we say ghiya, kaddu. So this is goods. So Saibi had a hobby. Saibi को possession वाला formula. So Saibi had a hobby. What hobby Saibi had? From here, for collecting goods. Goods collect करने का hobby है Saibi का. ठीक है? और ये एक primary school boy है. Further, he got them from a few cent. Got means प्राप्त करना. Them is used for goods. Yeah. Instead of goods, here it is written them. Them is objective of this sentence. So what is mean of this? V2 means he got them. Them means goods. वे इन्हें वह उन्हें पाता था. Get means पाना. This is instead of used to, V2 also we can use. तो वो पाया करता था उन्हें for a few cent. For a few cent. A few means थोड़ा. Cent का मतलब क्या होता है? यहाँ हमने लिख दिया है मनी. मतलब जापान का जो पैसा है, जैसे यूएसए में डॉलर होता है, यूके में पाउंड होता है, बहुत जगह रियाल होता है, अपने यहाँ पैसा है, वहाँ सेंट है. सेंट मीन्स जापान का रुपया. सो ही गॉट देम फॉर ए फ्यू सेंट. फॉर मीन्स में, यहाँ फॉर का मतलब में, वह इन्हें थोड़े पैसे में प्राप्त करता था. गॉट मीन्स पाना या प्राप्त करना. नाउ further the story. When he came home, जब वह घर आया करता था, he would first bore a knit hole in the top of the gourd and extract the seeds. Let me see structure and meanings of the words. Yeah, some new words are here.
uncommon, which is not used by you all guys. So we will see like bore, छेद करना. I wrote here. This is V2. छेद करना. V1. Bore means bore. A knit hole in the top of the gourd and extract the seeds. What is extract? निकालना. The seeds. What is mean of this? When, जब. He came home, जब वो घर आता था स्कूल से या घूम के की बात हो रही है. कहाँ से घर आता था? जब स्कूल से या कहीं से. He would first bore a neat hole. Neat means clean. Neat means पूरा एक hole. कहाँ पे? In the top of the gourd. घर आता था, एक पम्पकिन लेके आता था, है ना. तो ही वुड का यूज हम ना यूज टू के बदले भी करते हैं, मतलब पास्ट रूटीन को व्यक्त करना. तो ही वुड फर्स्ट, सर्वप्रथम वो, बोर मतलब क्या करता था? छेद करता था. ए नेट होल, एक क्लियर होल करता था ऊपर में, टॉप ऑफ द गर्ड. कौन सा गर्ड? द गर्ड. कौन सा द गर्ड? जो उसके पास होता था. हाँ. एंड दूसरा क्लाउज है एंड से. एक्सट्रैक्ट. एक्सट्रैक्ट का मतलब निकालना. निकालता था द सीड्स, और उसमें से बीज होल करके निकाल लेता था. आगे. देयर ही कवर्ड देम विद टी लीव्स टू गेट रीड ऑफ द बैड स्मेल ऑफ गर्ड. मतलब देयर मीन्स इस जगह पे, मतलब इस जगह, मतलब जहाँ कोई ये एक्टिविटीज हो रही है, इसका यूज हमने देयर के लिए किया गया है. ही कवर्ड. कवर्ड का मतलब भरना, डालना. कवर करते हैं ना, किसी चीज को ढक देते हैं. देम उन्हें, होल जो करता था और सीड्स निकाल लेता था. तो उस पम्पकिन को, कद्दू को, गर्ड्स को क्या करता था? कवर्ड कर देता था कद्दू को. देम में गर्ड के लिए यूज हुआ. विद, किसके साथ? किस चीज से? यहाँ से का यूज है विद का, हिंदी से. किस चीज से? टी लीव्स. टी लीव्स से. चाय पत्ती जो होती थी उसमें कोच देता था, डाल देता था, कवर कर देता, फुल कर देता था. किस चीज के लिए ऐसा करता था? टू का यहाँ के लिए हो गया. टू गेट रीड. रीड का मतलब छुटकारा दिलाना, मतलब हटाना. क्या हटाने के लिए? ऑफ द बैड स्मेल ऑफ गर्ड. स्मेल के बैड, बेकार स्मेल आता था, उसमें से निकालने के बाद एक अजीब सा स्मेल आता है. तो उसको, किसी को बहुत अच्छा कोई स्मेल लगता है, कोई खराब स्मेल लगता है, कोई गुड स्मेल होता है. तो वो उसके अनुसार वो बैड स्मेल था. उस बैड स्मेल को हटाने के लिए ऐसा वो करता था. ये एक यहाँ तक एक पैराग्राफ है. अब हम थोड़ा सा टाइटल में भी चलें, क्योंकि एकदम से हमने स्टार्ट कर दिया इस स्टोरी को. ये द आर्टिस्ट जो है वो नाम है सिग्गानोय ने डाला. क्यों? क्योंकि दिखाया गया है कि यंगस्टर्स के जो पैशन होते हैं, शौक होते हैं, उसको किस तरह से दूसरों के द्वारा दमन किया जाता है, आउटरेज किया जाता है, मतलब दबा दिया जाता है. इस स्टोरी में, इस जापानी कॉन्टेम्पररी स्टोरी से ये शो किया गया है. और इसमें सेबी का एक एग्जाम्पल लिया सिग्गानोय ने. उन्होंने कहा कि एक प्राइमरी स्कूल का बच्चा है, जो स्कूल लोग बच्चे खेलते थे, उसका खेलने का पैशन नहीं था, इस तरह से पैशनेट था एक गर्ड को डेकोरेट करने का स्पेशल टाइप से. आगे हम लोग देखते हैं कल के क्लास में. इतना कोई दिक्कत नहीं होगा, आशा है.